हेलो माय डियर स्टूडेंट। अच्छा बेटा हम उइस करे और आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो এনেকে হলে কেনেকে হ'ব ঠিক আছে সো আহা ইজনে আনজনক উইশ কৰো লেটস উইশ ইচ আদাৰ উইল ফুল মোটিভেটেড উইল ফুল এনথুজিয়াম ओके 1 2 3 स्टार्ट हेलो माय डियर स्टूडेंट मजा नहीं आया भाई और एक बार ठीक है हेलो माय डियर स्टूडेंट अरे मेरे बंदर के फौज आप लोग क्यों स्टूडेंट बोल रहे हो यू हैव टू से हेलो माय डियर सर ओके মই কম hello my dear student and you have to respond hello my dear sir okay so shall we start 1 2 3 hello my dear student okay that's fine welcome to MAM Accountancy Tuition Center and your YouTube channel that is Account Through. So my dear student okay so here we have the class. So in today's class I try to clear your concept. I try to clear a basic concept on accountancy. ठीक है? Listen student, what happened? I know you all are student of class 12. Our question may be arise. We are in class 12. Then why is teaching us the basic concept of accounting? Already we have learned in class 11. Absolutely correct, my dear student. Already you have learned in class 11. But see, what happened? There are some student who doesn't take tuition in class 11 with me. So what happened? Basically their basic are very weak. So listen, if for example अगर एक पेड़ है ठीक है এডাল গছ है ठीक है अगर पेड़ का जो रूट है সেই গছডাল যদি শিপা যদি স্ট্রং নহয় না সেই গছডাল ভালকে ग्रोन अप নহয় वो पेड़ ना ठीक से ग्रोन अप नहीं होते क्योंकि उन लोग का जो रूट है ना वही खराब है likewise if your basic concept is not clear if it is not transparently clear on accounting then you may face some difficult in class 12 so what I want now this that I want to clear your I want to make a clear view on the term accounting. So please student bhalke accounting what is the basic concept of accounting please dhyan diya. If you are able to learn the basic concept then I give you guarantee you will score a good marks in class 12. Okay? So I request all the student please look on the screen. Bhalke bujiba jodi buji nopa please clear koriba muk call koriba and you can give comment also. So shall we start? Okay. So unit number 1 that is introduction to accounting ঠিক আছে আজি আমি কি পঢ়িম introduction to accounting ঠিক আছে please presence of mind একদম active রাখা I request all the please যদি class কৰিছা please give your full concentration then you will able to learn something got it तो पहला concept है meaning of accounting so aha hami accounting ki hoy hum log samajhte hain theek hai a business entity engages itself in a numbers of activities. The activities may be in form of manufacturing activities or sale of goods or rendering service. See my dear student, कोई भी एक बिजनेस हो जिकोनो माने बिजनेस থাকিলে they engage in varieties of activities. कोई भी बिजनेस सिर्फ एक ही काम नहीं करते ठीक है वो लोग अनेक प्रकार के काम करते हैं कोনোবা এটা बिजनेस ओनली এটা काम नकरे they are engaged in varieties of activities ठीक है this activities may be in form of manufacturing activities. manufacturing activities का मतलब है सपोज तुम्हारा ऐसा बिजनेस तुम अपना बिजनेस में प्रोडक्शन करो फॉर एग्जांपल तुम शू का प्रोडक्ट करते हो ठीक है सपोज यू हैव अ शू प्रोडक्शन तुम्हें घर निजे जूता बनवाई तुम सेल करा সেইটো কি হ'ব मैन्युफैक्चारिंग और सेल ऑफ गुड्स मीन বস্তুবিলাক অলৰেডি ইউ অল নো ঠিক আছে एंड रेंडरिंग सर्विस माने not buying and selling only service there for example I am taking tuition classes this is an example of rendering service for example our CA কোনোবা CA কি কৰে কোৱাচোন ক্লায়েন্টক সার্ভিস দিয়ে ফর এক্সাম্পল ডক্টরে কি দিয়ে বস্তু বেচে না কিবা সার্ভিস দিয়ে সো দিস আর দ্য এক্সাম্পল অফ রেন্ডারিং সার্ভিস ক্লিয়ার বুঝছা সো হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে আ বিজনেস এন্টিটি এঙ্গেজ ইটসেলফ ইন নাম্বারস অফ অ্যাক্টিভিটিজ ইট মে বি ম্যানুফ্যাকচারিং buying and selling or rendering service. The ultimate motive of carrying on such activity is to earn profit. See, whoever person start a business, what is the ultimate goal? Absolutely correct, to earn profit. Got it? कोई भी बिजनेस कर रहा है उसका मेन मोटिव क्या है कोई भी प्रॉफिट कमाने के लिए ठीक है कोनोबा बिजनेस के लिए मेन मोटिव क्या है टू अर्न प्रॉफिट क्लियर every business is therefore interest to find out the amount of profit earned or loss income doesn't mean only profit sometimes may face loss also during a particular period so my dear student answer me suppose you start a business what is your main motive to earn profit so तुम लोगों मन जाबो ने तुम लोगों को मन जाता है कि नहीं कि कितना इस साल में हम लोग ने कितना कमाया या कितना हम लोग ने लॉस फेस किया वो जानने के लिए ठीक है तुम्हारे ऑब्वियसली मन যাব কি আমি এইটো বছৰ কিমান পইচা আৰ্ন কৰিলে কিমান পইচা আমাৰ লস হল ক্লিয়াৰ বুঝছা so for the purpose of accounting for the purpose of ascertaining the amount of profit earned or loss incurred a complete and systematic record of business transaction are required to be maintained see if you want to find out the profit or loss incurred during the particular period you have to maintain a systematic way of recording
अगर तुम लोग को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ जानना चाहते हो तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। तुमको सिस्टमेटिक वाइज से रिकॉर्ड करें, मतलब कब तुमने सामान खरीदा, कितना का सामान खरीदा, कितना का सेल किया, किसको सेल किया, ठीक है। ক্লিয়াৰ যদি তুমি কিমান আৰ্ণ কৰিলা বা কিমান তোমাৰ লছ হ'ল যদি জানিব বিচাৰিছা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, চিষ্টেমেটিক ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব, কিমান বস্তু তুমি কিনিলা, কিমান তুমি চেল কৰিলা, ক্লিয়াৰ বুজিছা। চ' accounting help a business in having a complete and systematic record of its business transaction। so তোমাক কোনে হেল্প কৰিব, মানে तुमको कौन हेल्प करेगा रिकॉर्ड करने में, दिस टर्म अकाउंटिंग, क्लियर। सो अकाउंटिंग तुमको हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और sometimes you may face loss, that what is the amount of loss you face, that amount is abstract। वो अमाउंट हम लोग निकालते किसके थ्रू, थ्रू अकाउंटिंग। जैसे हम लोग, मैंने अभी भी बोला, क्लियर है, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, सपोज कोई एक बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं बिजनेस में सिर्फ एक ही काम होते हैं, दे एंगेज इन नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज, क्लियर भैया। और उन लोगों का मेन मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट, क्लियर है। या तो कभी कभी लॉस भी हो तो अलग केस है, लेकिन मेन मोटिव क्या है तुम लोग का, टू अर्न प्रॉफिट। सो इफ यू वांट टू अर्न प्रॉफिट यू हैव टू डू बिजनेस, क्लियर। अगर तुमको बिजनेस करना ही, अगर तुमको प्रॉफिट अर्न करना, यू हैव टू डू बिजनेस, क्लियर। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा मन में क्या आता है कि यार कितना पैसा कमाए हम लोग ने, कितना लॉस हो हम लोग, चलो देखते हैं, क्लियर। कैसे देख पाओगे, यू हैव टू डू सिस्टेमेटिक रेकर्ड, क्लियर। তুমি কি কৰিব লাগিব, তুমি সিস্টেমেটিক ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব, আৰু তোমাক সিস্টেমেটিক ৰেকৰ্ড কৰিব কোনে হেল্প কৰিব, দিস টাৰ্ম একাউন্টিং। গট ইট। সো ইন সিম্পল একাউন্টিং কি হয়, ইট ইজ এ প্ৰসেছ which help us to find out the amount of profit or loss incurred during a particular period। absolutely correct, clear বুজিছা। মাইণ্ডত সোমাইছে নে অলপ, জাষ্ট এতিয়া অবভিয়াছলি ইমান ক্লিয়াৰ নহয়, বাট অলপতো সোমাইছে। একাউণ্টিং মানে কি হয়, কিবা এটা হয় যোনটোৱে আমাক হেল্প কৰে আমি কিমান আৰ্ণ কৰিলোঁ বা কিমান আমাৰ লছ হয়। okay, so a definition of accounting is according to American Institute of Certified Public Accountant, according to American Institute of Certified Public Accountant কি হৈছে, it is nothing, just মানে এই ইনষ্টিটিউটটোৱে একাউণ্টিঙৰ ডেফিনিশ্যন দিছে, ঠিক আছে। ফৰ এক্সাম্পল, according to your father you are a good boy, তো তুমি যে গুড বয় হয় কোনে কৈছে কোৱাচোন, তোমাৰ দেউতাই কৈছে। চ' আমি কেনেকৈ according to father বা according to my father I am a good boy, সেনেকৈ একাউণ্টিঙৰ ডেফিনিশ্যন কোনে দিছে, American Institute of Certified Public Accountant, clear। Accounting is the art of recording, obviously accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner, and in term of money, আমি কি রকমলি money, clear, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereon। got it। so এইটো definition তোমালোকে মাইণ্ডত মুখস্থ কৰি ল'বা, clear। already আমি কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিছো, একাউণ্টিং মানে কি হয়, it is the art of recording, classifying and summarizing। what do you mean by recording, জানা তোমালোকে। classifying means you also know, you are a student of class 12 obviously, basic dictionary definition বা basic dictionary meaning, ঠিক আছে। and summarizing in a significant manner and in term of money, আমি একাউণ্টিং কি ৰেকৰ্ড কৰোঁ, in term of money, transaction and event, what is transaction, what is event, further slide বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব। এতিয়া transaction মানে জানি থোৱা লেনদেন, ঠিক আছে। event means event is a part of, so transaction is a part of event, ঠিক আছে। event কি হয়, transaction কি হয়, তোমালোকৰ next slide বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব, মই বেলেগকৈ definition দি দিম, ক্লিয়াৰ। this is জানি থোৱা in a significant manner in term of money, transaction and event which are in a part of at least of financial character and interpret the result thereof। এটা বস্তু ধ্যান দিবা, আমি একাউণ্টিঙত only financial character ৰেকৰ্ড কৰোঁ। financial character মানে কি, those are related to the money, clear, and interpret the result thereof। আৰু লাষ্ট আমি ৰিজাল্টটো ওলা, মানে whether the business entity earn profit or face loss, because our main motive of business কি আছিল, to earn profit। as a businessman you obviously want to know how much amount you earn during the year or how much amount you face as a loss during the year, so which help us, accounting help us to find out that particular amount। so clear বুজিছা। এক্সামত যদি আহে what do you mean by accounting, ক্লাছ 12ত নাহে, ক্লিয়াৰ। যদি ক্লাছ 11 ষ্টুডেণ্ট কোনোবা ভিডিঅ' চাই আছা, দেন যদি এক্সামত আহে what do you mean by accounting, তেতিয়া ডেফিনিশ্যনটো দিছ ওৱান লিখিবা, according to American Institute of Certified Public Accountant, ক্লিয়াৰ। এনে বেচিকেলি কনচেপ্ট যদি বুজিছা, যদি বুজিব মন আছে মোৰ আগৰ স্লাইডকেইটা চাবা। মানে কি হয়, চব বিজনেছমেনে প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে বিজনেছ কৰে, এণ্ড দে ৱান্ট টু know the amount of profit or loss incurred, কোনে হেল্প কৰিব, একাউণ্টিং, ক্লিয়াৰ। গুড, ক্লিয়াৰ বুজিছা। এগেইন এইবিলাক কপিত লিখিবা, যদি নিলিখা নো ইউজ, আৰু ট্ৰাই কৰিবা নিজৰ ৱাৰ্ডত লিখিব কাৰণে, বিকজ দিছ অল নোটছ আৰ প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই মি। চ' मैं अपना खुद का नोट्स है मेरा, ठीक है। तो क्या होता है, मोर निजर सुविधार कारण लिखिছোঁ। सो जब तुम 3-4 महीने बाद पढ़ोगे ना,
शायद तुम लोग भूल जाओ, इसलिए क्या करना है तुम लोग को अपना वर्ड पे नोट्स, हिंदी में लिखो, आसामीज में लिखो, नेपाली में लिखो, जिसमें लिखना है लिखो। क्लियर है? सो हाँ, बेसिक अकाउंटिंग हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्लास 11 12 बीकॉम, ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म बिलक ना तुम लोग को 11 में भी मिला होगा, 12 में भी तो मिलेगा ही, और बीकॉम में भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आगे जब पढ़ोगे ना सीए वगैरह तब भी ये सब छोटा छोटा चीज़ लेकिन बहुत बहुत काम आने वाला चीज़ है, ठीक है। तो फर्स्ट इज प्रोप्राइटर। सो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द वर्ड प्रोप्राइटर? क्या है बोलो? क्लास 12 के स्टूडेंट हो अगर, आप लोग को पता होना चाहिए व्हाट डू मीन प्रोप्राइटर। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए। और अगर क्लास 11 वाला स्टूडेंट देख रहे हो, प्लीज़ आप लोग के लिए बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक है, प्लीज़ ध्यान देना। देखो एक दुकान है, व्हाट इज दिस? अ स्टोर। क्लियर है? और एक मालिक है, कहानी इसी में खत्म। तुम लोग को दिमाग में आ गया होगा क्लास 12 का स्टूडेंट में, आओ प्रोप्राइटर का मतलब ये है, ठीक है। এখন দোকান আছে আৰু মালিক এটা আছে অনলি এটা। ক্লিয়াৰ? মানে চোৱা, আমি এনসাৰ কৰো হোৱাট ডু মিন প্ৰপাৰাইটাৰ। ক্লাছ 11 ষ্টুডেণ্ট গতে কোৱাচোন প্ৰপাৰাইটাৰ মানে কি হ'ব পাৰে? স্যাৰ এনেকুৱা নাই নেকি এখন দোকান এটাই মিলে? এবসলিউটলি কাৰেক্ট। সো প্ৰপাৰাইটাৰ মিনছ হোৱাট? প্ৰপাৰাইটাৰ ইজ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল অৰ গ্ৰুপ অফ পাৰ্চন হু অন আ বিজনেছ। ক্লিয়াৰ? এনেকুৱা টাইপ ইণ্ডিভিজুৱেল বা গ্ৰুপ অফ ইণ্ডিভিজুৱেল পাৰ্চন who own a business। own a business মানে কি? business এটা কৰি আছে, business कर रहे हैं, ठीक है। all the business risks, you know business risks is undertaken by them as the required amount of capital is provided by them। so business का जितना भी रिस्क है कौन बेयर करेंगे? वो मालिक, ठीक है। business और जिम्मा रिस्क है कौन बेयर करिबो? वो ओनर। क्लियर है? the proprietor get reward for the risks undertaken by them in form of profit। अब मुझे बोलो, जब बंदा रिस्क ले रहे, जब तुमने एक बिजनेस खोले, मालिक तुम अकेला हो, पूरा पैसा तुम ही लगा रहे हो, तुम এটা बिजनेस खुलिसा, তুমি অকলে মালিক, গোটেই পইচা তুমি লগাইছা, সো গোটেই ৰিস্ক তোমাৰ। সো তুমি যদি ইন কেছ যদি প্ৰফিট আৰ্ন কৰা, সেই প্ৰফিটবিলাক কোনে ল'ব? হু ডিজাৰ্ভ দ্যাট এমাউণ্ট অফ প্ৰফিট? এবসলিউটলি কাৰেক্ট, দ্য ওনাৰ। গুড, ঠিক আছে। সিম্পল কথা, তুমি যদি ৰিস্ক লৈছা, তুমি যদি পইচা লগাইছা, প্ৰফিট তুমি ল'বা নে তুমি কাৰোবাক ফ্ৰেণ্ডক দিবা? ক্লিয়াৰ বুজিছা? অবভিয়াছলি নিদিয়া। ক্লিয়াৰ? যদি মূৰ্খ দিবা দ্যাটছ ডিফাৰেণ্ট থিং, কিন্তু তুমি নৰ্মেলি নিদিয়া। ক্লিয়াৰ? So if the business is owned by only one person, ध्यान दिबा, if the business is owned by only one person, such business is called sole proprietorship। कहानी इसी में खत्म। अगर कोई एक बिजनेस का एक ही मालिक है, एक बिजनेस एक मालिक, क्या होगा? ये सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। and the owner is called sole proprietor or proprietor। see listen student, you all are belong from commerce stream, ঠিক আছে। যদি তুমি commerce streamত পৰা বিলং কৰা তুমি কি কৰিব লাগিব? গোটেই কমাৰ্চিয়েল ৱৰ্ডবিলাক ইউজ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। তুমি মালিক বুলি ক'বা নেকি? তুমি অনাৰ বুলি ক'বা নেকি? নকোৱা, বিকজ ইউ আৰ ষ্টুডেণ্ট অফ কমাৰ্চ। চ' সেই যোনজন মালিক, সেই যোনজন অনাৰ, যোনটো আমি ইংলিছ ডিক্সনাৰীত অনাৰ বুলি কয়, আমি কমাৰ্চ ৱৰ্ডত কি বুলি কয়? এইটো সোল প্ৰপাৰাইটাৰ, ইয়াতো সৰি সোল প্ৰপাৰাইটাৰ, ইয়াতো প্ৰপাৰাইটাৰ। ক্লিয়াৰ? বুজিছা? এটা মালিক, এটা বিজনেছ, এটাই মালিক, কি এইটো? সেই বিজনেছটো কি বুলি কয়? সোল প্ৰপাৰাইটাৰশ্বিপ, ঠিক আছে। আৰু সেই মালিকটোক কি বুলি ক'ম আমি? প্ৰপাৰাইটাৰ, ইয়াতো সোল প্ৰপাৰাইটাৰ। ক্লিয়াৰ? very nice, very good, very good student, you are going well, बहुत ভালকে বুজি আছে চাগে। ক্লিয়াৰ? সো হা নেক্সট চাও কি হয়। এক্সাম্পল শ্বপকিপাৰ, আমাৰ মালিকটো আছিল, দেখিছেনে? শ্বপকিপাৰ, the only শ্বপকিপাৰ না, ঠিক আছে। সাপোজ ফৰ এক্সাম্পল দিছ কোচিং চেণ্টাৰ, ইয়াৰে কোচিং চেণ্টাৰটো মই গোটেই ৰিস্ক মই লওঁ। সো আই এম দ্য অনলি ওনাৰ। সো মই কি হ'লো? সোল প্ৰপাৰাইটাৰ। एंड मोर कोचिंग सेंटर टू गुटे बिजनेस तो मैं की बोली कम, ठीक है। ये जो कोचिंग सेंटर है मेरा, क्लियर है, इसका पूरा रिस्क कौन ले रहे हैं? अपन ले रहे, ठीक है। तो अगर मैं ले रहा हूँ तो मुझे क्या बोलोगे तुम लोग? सोल प्रोप्राइटर या तो प्रोप्राइटर। और पूरे बिजनेस को क्या बोलोगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इफ इट इज क्लियर, shall we move to the next slide? yeah, entity। see listen, small word but very critical concept, हल्के ध्यान दिया, ठीक है। entity, the term entity is an abstract one। abstract का मतलब क्या है? किसी चीज को निकाल के लाना, ठीक है। the term entity is an abstract one, it is used in mean an organization which as separate and different identity from its member। member का मतलब क्या है? बिजनेस का जो ओनर से या कोई भी शेयर होल्डर वगैरह, ठीक है। शेयर होल्डर के अभी इग्नोर करो, ये सब बहुत बिकॉम तुम लोग का क्लास 12 में भी है, बाद में हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ओनर समझो, ठीक है। तो द टर्म एंटिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट वन, इट इज यूज्ड टू मीन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच हैज अ सेपरेट एंड डिफरेंट आइडेंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। क्लियर है? क्लियर नहीं है, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। उससे पहले एक देख लो। अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन फॉर accounting is always done for entity, may be a business or non-business entity, usually called accounting entity। see listen, the term entity is an abstract one। for example, आप लोग ने एक दुकान खोले हो, ठीक है, स्वीट का दुकान खोले हो, ठीक है। सपोज तुम्हारे এখন মিঠাই দোকান খুলিছা। ক্লিয়ার? এতিয়া মোক কা, যদি তুমি when you open a sweet
स्वीट स्टोर और समथिंग एल्स, ठीक है। तुम्हें जी खोले, सपोज मिठाई दुकान का तुम्हें खुलीसा, सपोज तुम लोगों ने मिठाई का दुकान खोले, ठीक है। अब मुझे बोलो उस मिठाई का दुकान का तुम नाम दोगे कि नहीं? इतना मुझे मिठाई दुकान तुम्हें नाम दिबा, ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल शर्मा स्वीट, दिस शर्मा स्वीट इज एंटिटी, गॉट इट। तो हम लोग ने क्या किया, उस बिजनेस से मतलब उस बिजनेस का जो नेचर है उसको देख के एक नाम दिया, क्या नाम दिया? शर्मा स्वीट। ना कि तुम लोग ने शर्मा शू रखे हो, तुम लोगों ने कहा शर्मा स्वीट, दैट मीन्स आपने को पता चलता है कि क्या हुआ, मिठाई का दुकान है। सो दिस शर्मा स्वीट इज नोन एज एंटिटी। द टर्म एंटिटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट वन, इट इज यूज्ड टू मीन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो पता चल रहा है ना, शर्मा स्वीट से क्या है हम लोग का, शर्मा का दुकान है, मिठाई का दुकान है, ठीक है। विच इज सेपरेट एंड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, और ये अपना मेंबर से, अपना ऑनर से दूसरा है। सपोज ऑनर का नाम है, सपोज ऑनर का नाम है मिस्टर ए शर्मा, लेकिन बिजनेस का नाम क्या है? शर्मा स्वीट। क्लियर है? अब मुझे बोले जो अकाउंटिंग करोगे, जो तुम रिकॉर्ड करोगे, मिस्टर ए शर्मा के करोगे या शर्मा स्वीट का करोगे? नेक्स्ट लाइन ध्यान दो, अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन फॉर एन एंटिटी मे बी इन अ बिजनेस और नॉन बिजनेस एंटिटी, यूजुअली अकाउंट कॉल्ड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सो अकाउंटिंग किसके लिए किया जाता है? शर्मा स्वीट्स के लिए, ना कि मिस्टर ए के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। सो I want to ask you a question, or else if a question come in your exam, the question is accounting is done for fill in the blanks, ब्रैकेट में रखा है ओनर ऑफ द बिजनेस और फॉर द बिजनेस, आंसर होगा फॉर द बिजनेस। क्लियर है? तो एंटिटी क्या है? एक बिजनेस का नाम है, और अकाउंटिंग हम लोग किसके लिए करते हैं? एंटिटी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल MS बोरा ब्रदर्स, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, गुवाहाटी कॉलेज, ये सब क्या है? एंटिटी। और एक कलिता स्टोर, ये सब क्या है? एंटिटी। हालो ब्रदर्स, ये सब क्या है? दास स्टोर, ये सब क्या है? एंटिटी। यशवंत ज्वेलरीज, ये सब क्या है? सब के सब एंटिटी का एग्जाम्पल है। जयंत मिस्टर फंडर, ये सब क्या है? या तो ज्योतिष मिस्टर फंडर, ये सब क्या है? ऑल दिस आर एग्जाम्पल ऑफ एंटिटी। क्लियर है? सो टिल नाउ वी हैव लर्न थ्री थिंग, अकाउंटिंग क्लियर हो गया, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर, एक मालिक, एक बिजनेस, देन एंटिटी, बिजनेस का नाम। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव कैपिटल। क्या है कैपिटल? व्हाट इज कैपिटल? क्लास 12 के स्टूडेंट तुम लोग को आना चाहिए। व्हाट इज कैपिटल? बोलो। आई गिव यू 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, ओके, आंसर इट। व्हाट इज कैपिटल? आप बोल पाओगे? सी, तुम लोग बचपन से सुनते आए होंगे बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो मतलब সৰুৰ পৰা শুনি আহিছা बिजनेस स्टार्ट কৰিব কি লাগে? पैसा লাগে, पैसा লাগে। दिस पैसा पैसा क्या है पता है? इससे कैपिटल, ये पैसा पैसा क्या है? कैपिटल है। सिंपल अकाउंटिंग वर्ड पे, कॉमर्शियल वर्ड में क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल। सिंपल है, जो पैसा तुम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाते हो, সেইটো पैसा যোনটো তুমি বিজনেস স্টার্ট কৰিব কাৰণে লগা, সেইটো আমি কি বুলি কম? ক্যাপিটাল। সি দ্য ডেফিনিশন, the amount that used to start a business by the proprietor or proprietors and invested in the business enterprise for carrying on business is called capital। सिंपल फंडा है भाई, कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं। कैपिटल क्या है? जो पैसा हम लोग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। যোনটো पैसा हम बिजनेस स्टार्ट কৰিব কাৰণে লগাতে আমি কি বুলি কম? कैपिटल, ठीक है। It is the amount with the help of which goods and assets are purchased in the business। ये एक ऐसा पैसा है जिसके हेल्प से, जिसके मदद से हम लोग गुड्स का मतलब सामान, एसेट का मतलब प्रॉपर्टी, क्या है बाद में क्लियर होगा। फिलहाल जानो गुड्स और एसेट हम लोग खरीदते किसके हेल्प से? कैपिटल के हेल्प से, ठीक है। सिंपल है। सपोज तुम लोग सपोज तुमने कपड़ा का दुकान, शोरूम खोले हो, ठीक है। व्हेन यू ओपन अ शोरूम ऑफ क्लोथ, तुम लोग क्या सामान खरीदोगे? यू हैव टू बाय, यू हैव टू परचेज क्लोथ। তুমি ক্লোথ কিনিবা, ঠিক আছে। যেতিয়া তুমি ক্লোথ কিনিবা তুমি গুডছ বুলি কওঁ। সো তুমি ক্লোথ কিহেৰে কিনিলা? পইচাৰে, ঠিক আছে। সেই পইচাটো কি বুলি কম? ক্যাপিটেল। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ऑनर्स इक्विटी और नेट वर्थ और नेट एसेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग का घर स्कूल वाला, कॉलेज वाला नाम अलग है, घर में तुम लोग को बाबू सोना करके बुलाता है, ठीक है। अब वही तुम ही हो, लेकिन तुम्हारा दो नाम है। उसी तरह से कैपिटल ही है, उसका अलग नाम क्या है? ऑनर्स इक्विटी और नेट वर्थ और नेट एसेट। क्लियर है? डन डन डन। नेक्स्ट वी हैव ड्राइंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ड्राइंग्स क्या है बोलो? सर पेंटिंग। आर यू क्रेजी? तुम लोग कॉमर्स से बिलोंग करते हो, ठीक है। पेंटिंग नहीं है, कुछ अलग ही मतलब है, ठीक है। ड्राइंग्स का बेलेग मीनिंग है, पेंटिंग ना, ठीक है। सो हाँ, क्या देखते हैं? अच्छा पहले कहानी बोलता, फिर तुम लोग को समझ में आएगा। एक बंदा है अपना, अपना कौन है? बंदा, पूरा एकदम पढ़ाई वढ़ाई करके पूरा नौकरी वगैरह ले, ठीक है। नाउ ही वांट टू मैरी अ गर्ल। अब उसको क्या करना है? शादी करना है। क्लियर है? अब उसको क्या करना है? शादी करना है, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, एक अपना बंदा है, लौड़ा से, ठीक है। नाउ ही वांट टू मैरी अ गर्ल। अब उसको शादी करना है, ठीक है। বিয়া কৰাৰ কাৰণে ছোৱালী চাইছে, ঠিক আছে। সো ফৰ ৱেডিং হি নিড সাম মানি।
उसको क्या चाहिए अभी, पैसा चाहिए, ठीक है। क्लियर है, एक लड़का था, एक लड़की से प्यार हो गया, अब दोनों को शादी करना है, शादी करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। এটা ল'ৰা আছিলে, এজনী ছোৱালী আছিলে, दोनों के बीच प्यार हो गया, अब उन लोगों को क्या चाहिए, शादी करना चाहिए, तो पैसा चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो लड़का है वो क्या करेगा, पैसा के लिए बैंक पे जाएगा, ठीक है। अब बैंक वाला बोला नहीं नहीं नहीं, हमारे पास तो अभी पैसा नहीं है, हम लोग अभी आपको लोन नहीं दे सकते, ठीक है। अब ये जो बंदा है इसका एक बिजनेस है, ठीक है, इसका क्या है, एक बिजनेस है, ठीक है। उस बिजनेस में 3 पार्टनर है, ठीक है, ये और 2, ठीक है, तीनों ने मिलकर एक बिजनेस खोला। ये सोल प्रोप्राइटर तो नहीं होगा, कुछ अलग ही होगा, पार्टनरशिप बोलते हैं उसे, बाद में क्लियर होगा तुम लोग का, फिलहाल के लिए जान लो 3 पार्टनर है, और 3 आदमी बिजनेस करे तो पार्टनरशिप बोलेगा, मतलब व्हेन 2 और मोर पर्सन जॉइन टुगेदर एंड स्टार्ट अ बिजनेस इज नोन एज पार्टनरशिप फर्म, क्लियर है। तो वो सब फिलहाल नहीं है, फिलहाल उसको ध्यान मत दो, ठीक है। तो ये बंदा बैंक पे जाता है, बैंक पे उसको पैसा नहीं मिलता है, फिर दोस्त के पास जाते हैं, दोस्त इसको रहते हैं 2 लाख रुपया, कोई अलग दोस्त, ठीक है, ये पार्टनर वाला नहीं। जब 2 लाख रुपया दिया, 2 लाख से आजकल शादी होता है क्या, ठीक है। लड़की का ज्वेलरीज में 2 लाख से ज़्यादा चला जाता है। तो क्या हुआ, ये बंदा ने क्या किया, 2 लाख से तो नहीं होगा, तो ये क्या किया, अपना बिजनेस पे गया, बिजनेस के पार्टनर को बोला यार मुझे शादी करना है, आई वांट टू मैरी ए गर्ल, अगर मैं शादी नहीं करूँगा किसी और के साथ चली जाएगी, ठीक है। तो ये लोग ने क्या किया, लड़का ने क्या किया, ল'ৰা কি কৰিছে, বিজনেছৰ পৰা পইচা লৈছে, क्लियर पैसा, यस माय डियर, बिजनेसों पर पैसा लगा पारे, सपोज बिजनेस में पिछले साल का प्रॉफिट वगैरह रिजर्व में रखा होगा, तो क्या क्या बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, विड्रॉ ऑफ मनी फॉर पर्सनल यूज, ध्यान देना, विड्रॉ ऑफ मनी, पैसा लिया, पैसा लो फॉर पर्सनल यूज, निजर पर्सनल यूजर करने, ये जो शादी करे बिजनेस के लिए कर रहे कि अपने लिए कर रहे, अपने लिए कर रहे, तो ये जो पैसा विड्रॉ किया ना फॉर पर्सनल यूज, दिस अमाउंट इज नोन एज ड्रॉइंग्स, क्लियर है। ये पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। तो अब डेफिनेशन देखो, तुम लोग को खुद समझ में आएगा। अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, कभी कभी क्या होता है बिजनेस से गुड्स भी लेते हैं, सामान भी लेते हैं, ना कि सिर्फ पैसा, ठीक है। विड्रॉ बाय द ओनर, ओनर ही है ये, ठीक है, फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज और फॉर एनी प्राइवेट पर्पस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, यस माय डियर स्टूडेंट, व्हेन यू विड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम योर बिजनेस इज नोन एज ड्रॉइंग्स, क्लियर है, ठीक है। अच्छा तुम लोग लिख लो, ठीक है, तब लेकिन 10 सेकंड टाइम दे लो, लिख लो, अगर नहीं लिख पाते जल्दी जल्दी कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट एटलीस्ट ले लो, ठीक है, बाद में तुम लोग लिखते रहना। क्लियर। नेक्स्ट एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोग क्लास 12 में हो और अगर तुम लोग को एसेट का मीनिंग नहीं पता है, 2 मिनट साइलेंट फॉर दोस काइंड ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और अगर 11 में हो कोई बात नहीं बेटा, नया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग ने कॉमर्स लिए हो, बहुत मज़ा आने वाला ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत ही अच्छा स्कोप है। तो लेकिन मज़ा तब आएगा जब आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा, ठीक है। एसेट ये क्या है, मशीन, ये क्या है, बिल्डिंग, ये क्या है, कार, समझ में आ गया बेटा। जो प्रॉपर्टी है बिजनेस का उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज और एनीथिंग व्हिच इज इन द पोसेशन का मतलब, पोसेशन इज कॉल्ड एन एसेट। व्हाट डू मीन बाय पोसेशन, पोसेशन इज कब्जा, जोर ऊपर तुम्हार राइट्स আছে, অধিকাৰ আছে, ঠিক আছে, তো আমি কি বুলি কওঁ পজিশন, ঠিক আছে। তো कोई बिजनेस का प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी মানে গম পোৱা, সেই প্ৰপাৰ্টিটো আমি কি বুলি কওঁ, এছেট, ঠিক আছে। এনিথিং হুইচ এনাবল আ বিজনেছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ টু জেনেৰেট বেনিফিট ইন দ্য ফিউচাৰ ইজ এন এছেট। সেইবিলাক বস্তু যোনবিলাকে বিজনেছক প্ৰফিট দিয়ে, ফিউচাৰত বেনিফিট, ফিউচাৰত ভৱিষ্যতে লাভ হ'বৰ কাৰণে যদি কিবা বস্তু হেল্প কৰি আছে, এই বস্তুটোক আমি কি বুলি ক'ম, এছেট বুলি, ঠিক আছে। ফৰ এক্সাম্পল কেছ এণ্ড বেংক বেলেঞ্চ, ষ্টক, ষ্টক মিনছ the goods on which a business is dealing, furniture, machine, land and building, bills receivable etc. bills receivable মানে কি হয় চাগে তোমালোকক নাজানা, ইন ফিউচাৰ আমি পঢ়িম স্লাইড, এতিয়া জানি থোৱা বিলছ ৰিচিভেবল কি এটা এছেট হয়, ক্লিয়াৰ। কিছুমান কনচেপ্ট ন তোমালোক এনেকুৱা টাইপ পাবা যোনটো নতুন নতুন মই পঢ়োৱা নাই, বাট এক্সাম্পলত আছে, বাট নেক্সট স্লাইডত তুমি পাই যাবা, ঠিক আছে। চ' ধ্যান দিবা, ক্লিয়াৰ, simple. So what do you mean by asset? The property of a business enterprise or anything which is in the possession is called an asset. By anything that generate future benefit is called an asset. Example, land, building, stock, bills receivable, cash and bank balance, all these are example of asset, clear. So my dear student, there are 8 type of asset, ধ্যান দিবা, there are how many types of asset, 8 types আছে। আমাৰ এইবিলাক property বিলাক আমি different different categories কৰি দিছো, different group কৰি দিছো, ঠিক আছে। আমি means accountancy কৰি দিছো, ঠিক আছে। so আহা কি কি types of asset আমি পঢ়ো। First one is fixed asset. The word itself answering the definition or meaning of the fixed asset.
एसेट मीन्स प्रॉपर्टी फिक्स मीन्स जोंतु फिक्स হৈ থাকে जोंतु মানে इजिली তোমাৰ বিজনেছৰ পৰা ওলাই নাযায় সেইটো কি ফিক্স এসেট ক্লিয়াৰ Fixed assets are those assets which are held for continuous use in the business and are not meant for resale. Example, land, building and furniture. See, तुम लोग किसी एनुका एसेट किना एनुका प्रॉपर्टी किना बिजनेस है तुम लोग कुछ ऐसा प्रॉपर्टी खरीदते हो बिजनेस में जो तुम लोग रीसेल के लिए नहीं खरीदते हो अपना यूज के लिए खरीदते हो दिस काइंड ऑफ एसेट इज नोन एज फिक्स्ड एसेट in simple those assets which are purchased by the business for continuous use and not meant for resale. For example, तुम लोग एक कार का शोरूम खोलने वाला ठीक है सपोज यू वांट टू ओपन अ शोरूम ऑफ अ कार ठीक है तुम्हारे कार शोरूम खुलिबा जेटा तुम कार शोरूम खुलिबा फर्स्ट यू विल परचेज अ लैंड तुम लैंड किनिला देन यू विल परचेज और कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग क्लियर ध्यान दिबा land building now you are going to purchase goods means car tumi car kiniba for resale out of these three which are fixed asset absolutely correct building and land because tumi resale koribo karone tum log resale ke liye nahi kharid rahe ho you purchase for the purpose of continuous use but car tumi resale koribo karone kinisa so car is not come under the definition of fixed asset land and building will come then we have current asset एक दुकानदार है ठीक है उसका फर्नीचर का दुकान है वो फार्निचर किस लिए खरीदेगा এটা দোকান আছে দোকান ফার্নিচার দোকান ঠিক আছে হি তেখেতে ফার্নিচার কিয় কিনিব কোৱাচোন absolutely for the purpose of resale so in simple what do you mean by current asset those assets which are purchased for the means of resale current assets are those assets which are meant for sale or which can be converted into cash within 1 year clear convert into cash within 1 year মানে কি যোনটো আমি বেসিক্যালি convert into cash মানে কি suppose I have this water bottle ঠিক আছে মডেল কেছে water bottle মই তোমাক এটো দিলো তুমি মোক 10 rupees দিলা তো মই কি কৰিলো এই water bottle তোমাক দিলো and মই convert কিয় কৰিলো cash লৈ so this is the meaning of convert into cash so যোনবিলাক property তুমি within 1 year convert into cash কৰা মানে তুমি sell কৰা হেতু কি হ'ব আমাৰ কাৰণে current asset example debtors etc again what is debtors next slide পাই যাবা that tangible asset that the third one is tangible asset ঠিক আছে till now we have learned two assets fixed asset and current asset fixed means which are not meant for resale and continuous use then current means which are meant for resale and convert into cash within 1 year now tangible asset photo देखो आंसर बोलो फोटो से आंसर को व्हाट डू यू मीन बाय tangible asset एकदम सिंपल आंख है आंख से हम लोग क्या करते देखते तो इन सिंपल वो सब एसेट जो हम लोग को दिखाई देते हैं वो क्या होगा tangible asset tangible assets are those assets which can be seen touched and have physical existence example land building plant and machinery etc जहाँ पे तुम पढ़ाई कर रहे हो अपना आसपास में देखो जो तुम पढ़ी আছে তুমি ওচৰে পাজৰে চোৱা মোক কোৱা tangible asset কি হয় absolutely correct you may have a fan you may have a AC okay you may have a fan you may have an AC clear তোমাৰ চেয়াৰ থাকিব পাৰে ফাৰ্নিচাৰ থাকিব ল্যাপটপ থাকিব পাৰে এইবিলাক গোটেইবিলাক কি হয় tangible because this asset have a physical existence and you can see with your naked eye clear so heibilak asset junbilak ami dekha pa heibilak ki hobo tangible asset then we have intangible asset now answer me what do you mean by intangible asset fine wait nokoba answer first photo kon den ye ek aunty ठीक है aunty को दिखाई नहीं देता etu kono eta aunty dekha pone to muk ite connect kori kwa what do you mean by intangible absolutely correct junbilak ekon heibilak asset junbilak ami dekha na pa heibilak asset those asset which cannot be seen वो सब एसेट वो सब प्रॉपर्टी जो हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं intangible assets are those assets which do not have a physical existence and which cannot be seen or feel for example air you cannot see air clear for example love you cannot see love clear example goodwill trademark copyright etc ये सब क्या है सब intangible asset का example now what is goodwill trademark copyright ये सब बाद में clear होगा फिर भी मैं ऊपर ऊपर से एक बार बोल देता हूँ ये goodwill का मतलब reputation for example देखो क्या होता है सपोज दो कोचिंग सेंटर है ठीक है सपोज दो कोचिंग सेंटर एक मेरा है और एक किसी और का है ठीक है क्लियर है सपोज उन्होंने नया कोचिंग सेंटर खोला है और मैं सपोज 20 साल से पढ़ा रहा हूँ क्लियर है सपोज फॉर एग्जांपल आई एम आल्सो न्यू सपोज 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरा रेपुटेशन बहुत अच्छा है सपोज मेरा स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा है तुम लोग अगर देखो एक टीचर का रेपुटेशन किससे बढ़ता है स्टूडेंट का रिजल्ट के ऊपर ठीक है सपोज तुम्हारा रिजल्ट बहुत ভাল কৰিছা सपोज you score good mark in your exam then my reputation will increase when my reputation will increase new student want to take tuition with me तो जो नया स्टूडेंट आ रहे मेरा प्रॉफिट बढ़ा रहा है कि नहीं मेरा फ्यूचर मुझे फ्यूचर बेनिफिट दे रहा है कि नहीं क्लियर है और हम लोग को पता है जो चीज फ्यूचर बेनिफिट देते हो हम लोग के लिए क्या एसेट है क्लियर है सो दिस रेपुटेशन लीड्स टू बेनिफिट
इन फ्यूचर। तो क्या है लेकिन रेपुटेशन दिखाई दे रहा है क्या? यू कैन यू फील, कैन यू टच द रेपुटेशन? नो, यू कैन नॉट टच। सो रेपुटेशन का मतलब क्या है? गुडविल। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। क्लियर है? होप यू ऑल आर क्लियर। इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या है? जो चीज हम लोग को दिखाई, जो प्रॉपर्टी हम लोग को दिखाई नहीं देते। देन वी हैव लिक्विड एसेट। लिक्विड का मतलब क्या है? पानी, जो इजीली कन्वर्ट होते हैं। इन सिंपल क्या होगा? लिक्विड एसेट आर दोस एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश विद अ शॉर्ट पीरियड। एग्जांपल कैश इन एंड कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रिंसिपल एसेट। वो सब ऐसे जो बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल कैश एट बैंक, तुम लोग का बैंक में पैसा है, ठीक है, तुम्हारे बैंक में पैसा है। व्हेन यू गो टू द एटीएम, व्हेन यू एंटर द एटीएम, विद इन फ्यू सेकेंड यू आर एबल टू कलेक्ट द मनी। सो बहुत जल्दी तुम लोग को पैसा में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो? तो ये सब क्या है? लिक्विड एसेट। इन सिंपल लिक्विड एसेट आर दोस एसेट व्हिच कैन बी कन्वर्ट इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। एग्जांपल कैश इन एंड कैश एट बैंक। क्लियर है? देन वेस्टिंग एसेट क्या है? बॉम्ब। बॉम्ब का क्या काम है बोलो? एक बार फट गया फिर तुम उसको दोबारा कलेक्ट करके यूज कर सकते? नो, यू कैन नॉट यूज। दैट मीन्स दोस एसेट व्हिच कैन यूज ओनली फॉर वन टाइम, दिस विल बी नोन एज और विल बी ट्रीटेड एज वेस्टिंग एसेट। डेफिनेशन देखते हैं चलो। वेस्टिंग एसेट आर दोस एसेट व्हिच गेट एग्जॉस्ट थ्रू बीइंग वर्कड और यूज। एक बार यूज किया कहानी खत्म। एग्जांपल द माइन बिकम वैल्यूलेस वंस द होल ऑफ द कॉइल इज एक्सट्रैक्ट। सपोज कोयला का माइन है, जब तुम कोयला निकालोगे उस माइन से, वो जो माइन है, वो जो लैंड है, this land is not going to give future benefit. अब এতিয়া তুমি সেই লেণ্ডৰ পৰা সেই মাটিৰ পৰা তুমি আকৌ কয়লা নোপোৱা। সো দিস কাইন্ড অফ এছেট আৰ নন এজ वेस्टिंग एसेट। इन सिंपल बॉम्ब जो एक ही बार यूज कर सकते हो, यू कैन नॉट यूज ट्वाइस। नेक्स्ट कंटिंजेंट एसेट। A contingent asset is a possibility asset that arises from the past event and existence of which will confirm only by occurrence or non-occurrence of one or more uncertainty future event not wholly within the control of enter by example court case। सर क्या बोल दिया? समझ में नहीं आया? नहीं आया समझ में बेटा? कोई बात नहीं, एक फोटो दिखा रहा तुम लोग को पूरा का पूरा समझ में, स्पेशली लड़का को तो समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। यदि बुझी पोआ ना ऑब्वियसली तुम लोग का मुंह ऐसा हो गया हो, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। एक फोटो दिखा रहा, फोटो देखा है, फोटोখন চাই কিনে মোক কবা বুজিছানে নাই, ঠিক আছে। 10 সেকেন্ড দিছো, চাও কিমান তোমালোকৰ আইকিউ লেভেল। लड़का को तो समझ में आ गया होगा, लड़की लोग को शायद समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये कहानी बोलता हूँ, ठीक है। बच्चों को क्या होता है, कहानी बोलने से ना पूरा जिंदगी भर नहीं भूलते हो। आई गिव यू गारंटी, व्हाटएवर आई थॉट यू, तुम लोग जिंदगी में नहीं भूलने वाले, ठीक है। सी क्या है, अपना फोटो में देखो एक लड़का है, ठीक है, और एक क्या, एक लड़की है, ठीक है। এটা लड़ा আছে, এটা ছোৱালী আছে, ठीक है, क्लियर। लड़का क्या कर, लड़की को प्रपोज कर रहा है, ठीक है। लड़का क्या कर, लड़की को प्रपोज कर, जान आई एल यू, ठीक है। या आई एल यू, नो द फुल फॉर्म आई एल यू। तो लड़का बोले लड़की, अब मुझे बोलो ল'ৰাটো ছোৱালীক কি কৈছে, আই এল ইউ, ঠিক আছে। এতিয়া মোক কোৱা, क्या गारंटी है लड़की हाँ बोलेगी? क्लियर, आंसर मी। তুমি গ্যারান্টি দি কব ছোৱালী তো ইয়েস কব? নো, ইউ ক্যান নট প্রিডিক্ট, ইউ ক্যান নট गिव गारंटी। सो नाउ द होल थिंग डिपेंड ऑन द गर्ल। पूरा चीज किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है? लड़की के ऊपर। अगर लड़की ने हाँ बोल दिया लड़का के लिए बल्ले बल्ले है, और अगर ना बोल दिया वही देवदास वाला हाल है, ठीक है। तो लाइक वाइज कुछ कुछ ऐसा ऐसे होता है हम लोग का बिजनेस में, जो फ्यूचर हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, अपना कंट्रोल में नहीं रहता है, ठीक है। वो सब एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं? कंटीजेंट एसेट। ओके, लेट मी क्लियर यू मोर। फॉर एग्जांपल, অসমীয়া ষ্টুডেণ্টবিলাক বুজি পাই আছো ন? আই নো ইউ অল আৰ এক্সপাৰ্ট ইন হিন্দী অলছ'। সাপোজ ল'ৰা এটা আছে, ঠিক আছে, ল'ৰাটো ছোৱালীয়ে প্ৰপ'জ দিছে এণ্ড কৈছে আই লাভ ইউ, ঠিক আছে। এইটো গেৰাণ্টি নেকি ছোৱালীটো ইয়েছ ক'ব? ন' হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ। চ' সেনেকৈ চোৱা, ফৰ এক্সাম্পল, এতিয়া ধ্যান দিয়া। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए लैंड, ये क्या है? एक लैंड है, ठीक है, क्लियर। अब ये जो लैंड है ना, दो बंदा मिलके खरीदा था, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ओके। दिस लैंड हैज बीन परचेज बाय टू पर्सन, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ठीक है। ये जो ये माटीखिनि कोने किनिছে? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, क्लियर है। अब देखो क्या हुआ, पहले तो दोस्ती था, सबका दोस्ती होता है, बाद में इन लोगों का झगड़ा हो गया, क्लियर। अब क्या होगा? झगड़ा हो गया, दे फाइट विथ ईच अदर, ओके। सो व्हेन द फॉट व्हाट हैपेंड, मिस्टर ए बोल रहा है कि जो लैंड है ये उसका है। देखो
देखो ध्यान दो, ध्यान दिया, माटिखिनि कोने किनिছিলে কোৱাচোন, ए एंड बी मिलले किनि किनिছিলে, दोनों मिलके खरीदा था। लेकिन अब मिस्टर ए बोल रहे आफ्टर फाइट कि ये जो पूरा लैंड है किसका हो गया, मिस्टर ए का है। वो बोल रहे कि अब मिस्टर बी चुप थोड़ी ना बैठेगा, मिस्टर बी जाता है कोर्ट पे। मिस्टर बी कहाँ पे जाते हैं, कोर्ट पे। कि बोले सर, कोर्ट में जाके बोल रहे वकील को कि सर ये जो जमीन है हम दोनों ने मिल के खरीदा था, लेकिन मिस्टर ए ने हमसे धोखा किया और पूरा प्रॉपर्टी लेने का चाहता है। ठीक है, উকিলটো সৰি মিষ্টাৰ বি গ'ল আৰু কোৰ্টত ক'লে ছাৰ ছাৰ এই গোটেইখিনি মাটি আমি দুটাই কিনিছিলোঁ, এতিয়া মিষ্টাৰ ए ল'ব বিচাৰিছে। क्लियर। अब दोनों के बीच क्या होगा, कोर्ट में लड़ाई होगा। ठीक है, अब मुझे बोलो ये जो लड़ाई होगा ये क्या एक ही दिन में सॉर्ट आउट होगा, नहीं बेटा, कम से कम 2-3 साल लगेगा। ठीक है, जब 2-3 साल लगेगा तब तक यू कैनॉट से बी तब तक नहीं बोल सकता कि उसके लिए एसेट है। क्लियर है। अब मुझे बोलो अगेन अनदर क्वेश्चन, क्या कंट्रोल बी के ऊपर है, गोटे कंट्रोल के बीर ऊपर আছে नो, द होल कंट्रोल नाउ कन्वर्ट टू द कोर्ट डिसीजन। पूरा कंट्रोल किसके ऊपर चलेगा, कोर्ट के ऊपर। अगर कोर्ट ने बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी दोनों का होगा तब बी का वो एसेट होगा, और अगर बी केस हार गया दैट बिकम लाइबिलिटीज फॉर बी। एक तुम लोग कंटिजेंट लाइबिलिटीज भी मिलेगा तब और क्लियर होगा। तो अ कंटिजेंट एसेट इज ए पॉसिबल दैट अराइज फ्रॉम अ पास्ट इवेंट, झगड़ा हो गया, ठीक है, प्रपोज दे दिया, and existing of which will be confirmed only by occurrence or non-occurrence of one or more certain future event। कोर्ट का डिसीजन के ऊपर डिपेंड है, लड़के के ऊपर डिपेंड है, हाँ बोलेगी कि ना बोलेगी। नॉट होली विद इन कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, पूरा कंट्रोल बी के ऊपर नहीं था और यहाँ पे लड़का के ऊपर नहीं था, कंट्रोल था लड़के के ऊपर और वो वाला केस में कंट्रोल था कोर्ट के ऊपर। सो दिस काइंड ऑफ एसेट इज नोन एज कंटिजेंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट केस, डन डन डन, समझ में आ गया। ठीक है, फोटो याद करना, लड़की प्रपोज दे रहे, सॉरी लड़का प्रपोज दे रहे, लड़की प्रपोज नहीं देती है। ठीक है, देन लास्ट वी हैव फिक्टिशियस एसेट। 7 खत्म होगा, लास्ट वाला इजी है। फिक्टिशियस एसेट आर दोस एसेट व्हिच कैन नॉट बी रियलाइज इनटू केस, जो केस में रियलाइज नहीं होता है, एंड नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस एसेट, और इन फ्यूचर में एसेट बेनिफिट नहीं मिलता है। सच एक्सपेंसेस इंक्लूड द एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ सच एज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, बट ये एसेट पे है, क्योंकि देखो सपोज तुम्हारा बिजनेस हो नॉर्मल, तुम किसी से एडवर्टाइज करो, मुझसे एडवर्टाइज कर रहे हो, कोई सामान नहीं खरीदने वाला। अगर मेरे का शाहरुख खान आके एडवर्टाइज करे, कोई भी सामान खरीद लेगा, तो ये सब एक्सपेंडिचर क्या है, एसेट है। सो दिस काइंड ऑफ एसेट इज नोन एज फिक्टिशियस एसेट। क्लियर। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज रिपीट विथ मी, व्हाट इज एसेट, प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस इज नोन एज एसेट। क्लियर है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट, 7 8। okay, first one is fixed asset। okay, capital we have done, एक minute। oh yeah, asset, yeah, first one is fixed asset which are not meant for resale and continuous use, good, very good। then we have current asset which are meant for resale and in which business deal for debtors। क्या है बाद में हम लोग बोलने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, टेंजिबल जो हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। इंटेंजिबल क्या है, लव एयर, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता लेकिन एसेट है, ठीक है। देन लिक्विड एसेट जो इजीली केस में कन्वर्ट होते हैं, फाइन। देन वी हैव वेस्टिंग एसेट, बॉम। देन वी हैव कंटीजेंट एसेट, प्रपोज दे रहे, याद करना, ठीक है। देन फिक्टिशियस एसेट, शाहरुख खान, गॉट इट। सो अब मुझे बोलो बिजनेस में सिर्फ प्रॉपर्टी रहता है या कुछ ऑब्लिगेशन, कुछ रेस्पॉन्सिबल भी रहते हैं। ऑब्वियसली रेस्पॉन्सिबल भी रहेगा, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबल क्या है, देखो मतलब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मीन्स ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स दायित्व, ऑब्लिगेशन मीन्स निजर दायित्व। फॉर एग्जाम्पल यू हैव सम रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स और तुम तुम्हारे निजर के ऊपर रेस्पॉन्सिबल है, तुम लोग के पेरेंट्स के ऊपर तुम्हारा कुछ रेस्पॉन्सिबल है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज। ठीक है, देयर आर नॉर्मली 2 टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज टू द ओनर। द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस टू द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल, अपने ओनर के ऊपर ही लायबिलिटीज है। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ओके लेट मी क्लियर। सपोज मिस्टर है, सपोज मैंने, ओके सपोज ये है मिस्टर गुलाटी, ठीक है। मिस्टर गुलाटी ₹10 लाख से एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस का नाम लिखा है गुलू मोटर, ठीक है, फाइन। मिस्टर गुलाटी ने क्या किया, 10 लाख रुपया लगाया है, नाम क्या रखे, गुलू मोटर। अब नाउ माय डियर स्टूडेंट, बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन। आउट ऑफ दिस, सॉरी, दिस 10 lakh is known as what? Absolutely correct, capital। and Mr. Golu is proprietor, and this is entity, and the whole business is known as sole
प्रोप्राइटरशिप। क्लियर भैया? सो अब देखो, जब मिस्टर गोलू 10 लाख रुपए लगा रहे, गोलू का मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन उससे पहले भी एक मोटिव रहना चाहिए। क्या बोलो? कितना पैसा लगाए वो पैसा हम लोग को बिजनेस बंद होने से पहले रिटर्न मिल जाए। यस माय डियर स्टूडेंट, सपोज तुम्हें पैसा लगाया ऐसा मेन मोटिव की बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, बट प्रॉफिट से पहले भी एक मोटिव होना चाहिए कि मतलब जितना पैसा लगा उतना पैसा हम लोग को रिटर्न मिले। ठीक है, तो ये बिजनेस का रेस्पॉन्सिबल है कि नहीं? क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं? अकाउंटिंग में कार करने करो मिस्टर गोलू ने गोलू मोटर्सर কাৰণে, गोलू मोटर्सर কাৰণে। ঠিক আছে, যদি गोलू मोटर्सर কাৰণে কৰো, गोलू যে পইচা আমি যে 10 লাখ টকা ঘূৰাই দিব লাগিব মানে বিজনেছে, তো this is also an example of obligation। clear? যদি obligation হয় কি হ'ব? liabilities। so this kind of liabilities is known as owner liabilities to the owner। clear? আৰু likewise বাহিৰা মানুহৰ কাৰণে liabilities থাকিব। for example তুমি সব বস্তু এটা কিনিলা, তুমি সেই বস্তুৰ পইচা দিব লাগিব। clear? তো এইবিলাক কি হ'ব? liabilities to the outsider। obligation to the business, obligation of the business to the outsider is called liabilities। for example, a firm purchased good for rupees 5,000 on credit from Partha and Sukumar, so rupees 5,000 payable to Partha and Sukumar is liability। give some other example। first এইটো example বুজি লোৱা, then বেলেগ example দিব। ঠিক আছে, suppose এইটো আমাৰ কোন আছিলে? গুলাটি। ঠিক আছে, গুলাটিয়ে কি কৰিছে? there are two there are two member, Partha and Sukumar। গুলাটি rupees 5,000 বস্তু বাকিত কিনিছে কাৰ পৰা? PS ৰ পৰা, Partha and Sukumar। এতিয়া মোক কয় যেটা বাকিত কিনিছে, in future গুলাটি bound to pay that 5,000, so responsible থাকিলে নাই। but এতিয়া মোক P and S businessৰ member নে outside business? yes, outside the business। so this kind of obligation is known as liabilities to the outsider। clear? so doubt একদম কনফিউজ নকৰিবা, একদম সিম্পল, একদম ইজি। মই কৈছো there are two liabilities mean obligation। there are two type of obligation, obligation to the owner and obligation to the outsider। owner মানে কি? গুলাটি লিমিটেড, মানে বিজনেছৰ মানুহকে আমি পইচা ঘূৰাই দিব লাগিব। then obligation to the outsider, those member which are not connected to the business directly is known as obligation to the outsider। clear? বুজিছা? এক্সাম্পল কেইটামান লিখি কিনি কমেণ্টত দিবা, ইয়াতো মোক মেছেজ কৰিবা। ঠিক আছে? ক্লিয়াৰ? তো বুজিছা? now again there are three types of obligation to the outsider। first one is current liabilities। current liabilities মানে কি হ'ব কোৱা? সেইবিলাক liabilities যোনবিলাক within 1 year আমি ঘূৰাই দিব লাগিব। current liabilities are those liabilities which are to be paid within a short time, generally within 1 year। they are required to be paid out of current assets, for example bank overdraft, bills payable, etc। ভালকে বুজা নাই? again ফটো দেখাম। okay fine, now answer me, what do you mean by current liabilities? yes my dear student, bad girlfriend। bad girlfriend का क्या कहानी है बोलो? bad girlfriend की कहानी को, they are not with us for more than 1 year। ये जो bad girlfriend होते हैं ना, ये लोग हम लोग के साथ 1 साल से ज़्यादा नहीं रहती है। क्लियर है? तो लाइकवाइज वो सब लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर ही पे करना है, সেইবিলাক লাইবিলিটি যোনবিলাক আমি 1 বছৰ ভিতৰত पे কৰিব লাগিব, those liabilities will be treated as current liabilities। अब फोटो माइंड में डालो, एक लड़की है जो बेड गर्लफ्रेंड है, बेड गर्लफ्रेंड हम लोग के साथ हमारे लोग 1 বছৰ বেছি না থাকে। सो लाइकवाइज current liabilities লগত connect কৰা, then definition to কৰা। current liabilities are those liabilities which are not to be paid within a short time। ठीक है, जो which are to be paid, which are to be paid within a short time, generally within 1 year, যোনটো আমি 1 বছৰ ভিতৰত ঘূৰাই দিলো। ফৰ এক্সাম্পল বেংক ওভাৰড্ৰাফ্ট, বিলছ পেয়েবল etc। বেংক ওভাৰড্ৰাফ্ট কি হয়? নেক্সট স্লাইডত আছে, দেন মই ওপৰৰ পৰা কৈ দিছোঁ। বেংক ওভাৰড্ৰাফ্ট মানে কি জানা? সাপোজ তোমাৰ একাউণ্টত 10,000 আছে আৰু তুমি কেতিয়াবা 11,000 ওলাই লৈছা, নৰ্মেলি নহয় বাট কিছুমান এলাউ থাকে। you have 10,000 in your saving account but you withdraw rupees 11,000, so 1,000 তুমি excess withdraw কৰিলা নে? so this is known as bank overdraft। আৰু bills payable মানে again মই ক্লিয়াৰ কৰিম পিছত। ঠিক আছে, এতিয়া জানিতো bills payable মানে কি হয়? কাৰোবাক পইচা আমি দিম বুলি এখন কাগজত লিখি দিছোঁ, সেই কাগজখনক bills payable বুলি কয়। ঠিক আছে, পিছত ক্লিয়াৰ হ'ব। फॉर द टाइम बिंग current asset, current liabilities ध्यान दें। तो current liabilities को बेड गर्लफ्रेंड जो 1 साल के अंदर हम लोग को देना है। देन वी हैव गुड गर्लफ्रेंड ऑल्सो। সেই গুড গার্লফ্রেন্ড আমি কি বুলি কওঁ? লং টার্ম লাইবিলিটিজ। এতিয়া মোক কোৱা, গুড গার্লফ্রেন্ড 1 বছৰ থাকে নে 1 বছৰতকৈ বেছি থাকে? एब्सोल्युटली करेक्ट, 1 বছৰতকৈ বেছি থাকে। बिल्कुल सही बोल रहे हो, गुड गर्लफ्रेंड हम लोग के साथ 1 साल से ज़्यादा रहती है। सो लाइकवाइज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या है? जो हम लोग को 1 साल के बाद पे करने से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने बैंक लोन लिया है, सपोज तुमने 10 करोड़ लोन लिया, इज पॉसिबल टू रिटर्न विद इन 1 ईयर? नो माय डियर, इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होता है? 1 साल से ज़्यादा चलता है। तो डेफिनेशन देखो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और फिक्स लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटी व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी पेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली मोर देन a year। एग्जाम्पल लोन फ्रॉम बैंक, डिवेंचर। अगेन डिवेंचर क्या? इट्स अ काइंड ऑफ
लोन, बाद में क्लियर होगा, फिर भी फिलहाल के लिए जानो डिबेंचर क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ लोन, ठीक है। तो लाइबिलिटीज हम लोगों ने कितना पढ़ा है, 2। पहला क्या था, करंट लाइबिलिटीज बैड गर्लफ्रेंड जो 1 साल के अंदर रिटर्न करना है, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज गुड गर्लफ्रेंड जो 1 साल से ज़्यादा रहती है, ठीक है। अब लड़की लोग तुम लोग नाराज मत होना, वही उल्टा कैसे, बैड बॉयफ्रेंड गुड बॉयफ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, और एक मैंने एसेट के दौरान ही बोला था, एसेट तो टाइम मैं কৈছিলো কি আছিলে মন কৰাচোন, एब्सोल्युटली करेक्ट, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, वही याद आ गया होगा तुम लोगों को। Contingent liability, all liabilities that is possible obligation that arise from the past event and the existing of which will be confirmed only by the occurrence and non-occurrence of one or more uncertain future event. These are not wholly within the control of enterprise. Example court case, वही court case, अगर लड़की ने ना बोल दिया, लड़के के लिए लाइबिलिटीज हो गया, अगर हाँ बोलती है तो एसेट होगा। ছোৱালীটো যদি না কৈছে ল'ৰাটোৰ কাৰণে লাইবিলিটিজ আৰু ইয়েছ ক'লে এছেট। লাইকৱাইজ বি, যদি কেছটো জিতিলে হয়, এছেট হ'লে আৰু হাৰিলে লাইবিলিটিজ, ক্লিয়াৰ। চ' অলমষ্ট 70% বেচিক কনচেপ্ট ইজ অভাৰ, ঠিক আছে। যদি এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে ন, চাবা ক্লাছ 12ত বহুত বস্তু ইজি পাবা, ঠিক আছে। আৰু কিছুমান আছে, বাট টিল হিয়াৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, তোমালোকে চবকেইটা লেচনত তুমি এইবিলাক কাৰেণ্ট এছেট, ফিক্সড এছেট, কণ্টিনজেন্ট, এইবিলাক ৱৰ্ড শুনিয়ে থাকিবা, ঠিক আছে। দেন এক্সপেন্সেছ, এক্সপেন্সেছ মানে কি, খৰচ, চিম্পল, ঠিক আছে। বেছি পঢ়ি নাথাকোঁ, মই কৈ দিছোঁ এবাৰ, তাতে গম পাবা। এক্সপেন্সেছ ইজ দ্য কষ্ট ইনকাৰ্ড ইন প্ৰডিউচিং এণ্ড চেলিং গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ, কিবা এটা বস্তু বনোৱাতে বা বেচোঁতে যিখিনি খৰচ হয়, কি বোলে এক্সপেন্সেছ। According to Finney and Miller কি কৈছে, expenses is the cost of use of thing or service for the purpose of generating revenue. Revenue মানে কি, ইনফ্লো, মানে তুমি বেছিক কিমান পইচা পাইছা। ফৰ এক্সাম্পল কষ্ট অফ গুডছ সোল্ড, এমাউণ্ট পেড ফৰ চেলাৰী, ৰেণ্ট, কমিশ্যন, এটচেট্ৰা। দিছ অল আৰ এক্সপেন্স। এক্সপেন্স মানে চিম্পল, খৰচ। বিজনেছত তুমি এমপ্লয় ৰাখিবা, এমপ্লয়ক তুমি চেলাৰী দিবা, কি হ'ল তোমাৰ খৰচ। চ' দিছ এক্সপেন্স ইজ ন'ন এজ, দিছ কাইণ্ড অফ এক্সপেণ্ডিচাৰ ইজ ন'ন এজ এক্সপেন্সেছ। সৰি। দেন ইনকাম, অপজিট অফ এক্সপেন্সেছ। अच्छा, इनकम तो ध्यान दिया, ठीक है, बिकॉज बहुत स्टूडेंट का माइंड में ना रेवेन्यू और इनकम एक जैसा लगता है, बट दोनों एक है नहीं, बोथ आर डिफरेंट, क्लियर है। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। एग्जांपल गुड कॉस्टिंग इतना इतना इतना, ठीक है, ओके। एग्जांपल कैसे समझते हैं, ठीक है, बोला है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स तुमने कितना सेल करके पैसा कलेक्ट किया, या तो ट्यूशन या तो कोई भी सर्विस देके तुमने कितना पैसा तुमको मिला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने सेल किया पूरे साल में 10 लाख, ध्यान रखना सेल्स इज इक्वल टू रेवेन्यू, द टोटल अमाउंट ऑफ कलेक्ट इज नोन एज रेवेन्यू, ठीक है। अब तुमने एक्सपेंस किया है ₹6 लाख, नाउ आंसर में इज इट एक्सेस ऑफ रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू ज्यादा है किससे, एक्सपेंस को कंपेयर करके। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस, मतलब 10 लाख तुम्हारा रेवेन्यू था और 6 लाख तुम्हारा एक्सपेंस है, मतलब एक्सेस ऑफ रेवेन्यू हुआ कि नहीं, रेवेन्यू ज्यादा है। सो दिस 4 लाख इज नोन एज इनकम, क्लियर हुआ। देखो ध्यान रखना, रेवेन्यू का मतलब तुमने सेल करके कितना पैसा अर्न किया। फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक कार का शोरूम है, तुमने कार 10 लाख का सेल किया, ठीक है। जब तुमने 10 लाख का सेल किया, मुझे बोलो क्या 10 लाख ही तुम्हारा इनकम है, क्या गुते 10 लाख है तुम्हारी इनकम नहीं की, नो। तुमने उसमें कुछ खर्च किए होंगे, तुमने एम्प्लॉय को पैसा दिए होंगे, तुमने इवन वो कार बनाने में भी तुम लोग का रॉ मटेरियल लगा होगा, ठीक है। तो सब मिला के तुम्हारा 6 लाख रुपए गया। अब तो 4 लाख रुपए है, ये क्या है, ये इनकम है। ये 4 लाख तो क्या तुम्हारा इनकम है, ठीक है। एग्जाम्पल्स हुआ द गुड कॉस्टिंग 22,000 का गुड्स है एंड सोल्ड फॉर 30,000, 30,000 का बेचा है। अब मुझे बोलो रेवेन्यू कितना है इसका, कमन आंसर मी फास्ट। रेवेन्यू का मतलब क्या था, टोटल पैसा। सो यहाँ पे हम लोग, मैं क्या लिख रहा हूँ, रेवेन्यू इज 30,000, गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। देन व्हाट इज एक्सपेंसेस, 22,000, yeah, it's 22,000 and the difference between the two, that is difference between revenue and expenses. अब मुझे बोले excess of revenue over expense है कि नहीं, कितना 8,000 is what sorry income, clear है। So in simple, income is equal to revenue minus expenses। लास्ट फॉर्मूला तो जो लास्ट वाला फॉर्मूला देखो, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, क्लियर है, फंडा क्लियर है भाई, पूरा अच्छे से समझ में आ रहे हैं,
ठीक है ভালকে বুজি পাই আছা ओके देन एक्सपेंडिचर another name of expenses is known as expenditure हम लोग पढ़ेंगे नहीं वही खर्चा है खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर स्क्रीनशॉट ले लेना पढ़ लेना ठीक है अच्छा फिर भी एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ ठीक है एनी पेमेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग और लाइबिलिटीज फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट तुम एक्वायरिंग एसेट का मतलब क्या है अपना बिजनेस में एसेट ला रहे हो उसको लाने में कुछ जो खर्चा हो रहा है ना जी खर्चा जो हमें की लिखो एक्सपेंडिचर goods or service is called expenditure thus any type of payment for receipt of benefit in is term as expenditure ठीक है वही पुराना वाला हाल है there are two type of expenditure this is very important there are two type of expenditure capital expenditure revenue expenditure capital ध्यान रखना expenditure कितना प्रकार का दो होते हैं capital expenditure very 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 important especially for the first chapter of class 12 that is non profit organization कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है देखो एनी एक्सपेंडिचर व्हिच इज इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट इन टर्म एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्जांपल टाइम ऑन स्पेंड ऑन पर्टिकुलर और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग प्लान ओके पहले पढ़ ले फिर चलो ठीक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एनी एक्सपेंडिचर व्हिच द बेनिफिट इज रिसीव फॉर वन अकाउंटिंग ईयर इज टर्म एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जांपल सैलरी टू द स्टाफ कमीशन एटसेट्रा क्या है देखो we all know that there are two type of expenditure what are the capital expenditure and revenue expenditure আমি জানো ঠিক আছে ক্লিয়ার সো মই লিখি লও capital expenditure is CE okay and revenue expenditure that is RE क्लियर है देखो पहला पॉइंट एक्सपेंसेस लिखना तुमको ठीक है which incurred one or two times in a accounting year is known as capital expenditure सर समझ में नहीं है सर बुझी পোৱা নাই ओके মই বুজাইছো ঠিক আছে সেইবিলাক খৰচা যোনবিলাক তুমি এটা বছৰত এটা একাউন্টিং ইয়াৰত এবাৰ বা দুবাৰে কৰা মানে ৰেগুলাৰ তুমি নকৰা ইন সিম্পল হুইচ আৰ নন ৰেগুলাৰ ইন নেচাৰ ৰবা দে মই ইয়াতে লিখি দিওঁ আৰু which are non-regular in nature is known as capital expenditure সেইবিলাক खर्चा those expenditure जो साल में एक या दो बार ही होते हैं যোনবিলাক ৰেগুলাৰ নহয় সদায় নহয় মান্থলি নহয় পিৰিয়ডিকলি নহয় কোৱাৰ্টাৰলি নহয় these all expenses will be treated as capital expenditure now my dear student my dear golumulu student answer me what do you mean by revenue expenditure बहुत स्मार्ट हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है उल्टा ऑफ ऑपोजिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंस सो एक्सपेंसेस which are regular oblique recurring in nature are known as revenue expenditure वो सब खर्चा जो महीने में সেইবিলাক खर्च जो मंथली বা प्राय হয়ে থাকে which in simple which are regular in nature वो सब क्या हम लोग के लिए revenue expenditure so till now we have learned two things capital expenditure revenue expenditure what is capital expenditure which are non recurring in nature जो साल में एक या दो बार होते हैं ठीक है and expenses which are regular in nature are known as revenue expenses ठीक है for example expenses on girlfriend वो क्या है तुम लोग के लिए recurring है ठीक है तो हमेशा करते रहते but expenses on parents सर होता ही नहीं है करते नहीं है बेटा ये तो बात है ठीक है तो ये सब क्या होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर সেইবিলাক খৰচা যোনবিলাক গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ওপৰত কৰা মানে যোনবিলাক ডেইলি কৰা সেইবিলাক কি হ'ব ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ এণ্ড অন দ্য আদাৰ হেণ্ড সেইবিলাক খৰচা যোনবিলাক পেৰেণ্টছৰ ওপৰত কৰা যোনবিলাক নকৰে বছৰত এবাৰমান কৰা আৰু মাদাৰ্ছ ডে দিনা কৰিবা চকলেট এটা দিবা দেখিছে লাইকৱাইজ ছোৱালীবিলাকো ছেম হয় চ' সেইবিলাক কি আমাৰ কাৰণে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ক্লিয়াৰ বুজিছা নেক্সট আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ধ্যান দিবা for example you have a building clear है
ঠিক আছে এই বিল্ডিংটো বনাওঁতে যোনবিলাক খৰচা গ'ল construction of building for example rupees 5 lakh এই যে 5 লাখ হলে তোমার কারণে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার না রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার বিল্ডিং তুমি কি ডেইলি বনাবা নেকি নবনোৱা আৰু বিল্ডিং তো তুমি প্ৰফিট অবভিয়াসলি প্ৰফিট হয় যোনটোৰ পৰা প্ৰফিট পায় সেইটো কি পাবা কাৰণে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ গুড ক্লিয়াৰ বুজিছা নেক্সট তুমি কি কৰিলা এই দরজাখন ভাঙি গ'ল এদিন after 1 year this door has been break যেতিয়া ভাঙি গ'ল এগেইন তুমি ইয়াতে দরজা এখন বনাবা ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ ইয়াতে rupees 5000 গ'ল now my dear student my dear smart student my dear qualified student answer me this 5000 will be today's revenue or capital ধ্যান দিবা এইটো ৰেগুলাৰ নহয় কৰেক্ট বাট মুকা কিবা তোমাৰ এক্সট্ৰা বেনিফিট দিছে জানো no it doesn't give any extra benefit if our expenses incurred and it doesn't give any extra benefit then also it is known as revenue expenses so till na ami duta bostu kom palo jun bilak খৰচা বছৰত এবাৰ বা দুবাৰ হয় বা যোনটো ফিউচাৰ বেনিফিটৰ কাৰণে হেল্প কৰে সেইটো আমাৰ কাৰণে কি হ'ব ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ সেম এজ লাইক তুমি পেৰেন্টছক বছৰত এবাৰ বা দুবাৰে খৰচ কৰে হেতৰ ওপৰত মাদাৰ্স ডে দিনা তুমি চকলেট দিয়া ফাদাৰ্স ডে দিনা তুমি কিবা এটা আনি দিবা ঠিক আছে সো হেতু তোমাৰ বছৰত এবাৰ বা দুবাৰে কৰা সো দিস ইজ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ কিন্তু তুমি যেতিয়া তুমি পেৰেন্টছক যেতিয়া গিফট দিবা দে হ্যাপি হেতে হ্যাপি হয় उन लोग खुश होता है फिर तुम लोग को रिटर्न गिफ्ट देते हैं सो तुम्हारा बेनिफिट हो रहा है कि नहीं बच्चों तो ये क्या होगा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकिन जब तुम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ जो खर्च कर रहे हो डेली कर रहे हो लेकिन कोई बेनिफिट नहीं दे रहे वो क्या होगा तुम लोग के लिए रेवेन्यू अगेन आई हैव एन एग्जांपल सपोज तुमने यहाँ पे एक और फ्लोर बना दिया सपोज इसमें तुम्हारा ₹7 लग गया ठीक है व्हेन यू कंस्ट्रक्ट अनदर फ्लोर इट गिव यू मोर प्रॉफिट सपोज पहले तुम रेंट से तुम लोग को 10,000 आ रहा था अब तुम्हारा कितना आएगा 20,000 सो दिस एक्सपेंडिचर इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर है देन सिंपल किया जो साल में एक या दो बार होता है और जो फ्यूचर बेनिफिट तो क्या है कैपिटल और जो साल में हमेशा होता है और फ्यूचर बेनिफिट नहीं देते हैं वो हम लोग के लिए क्या होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डन क्लियर फाइन ठीक है नेक्स्ट वी हैव डेटर्स ओ माय गॉड डेटर्स क्या है ये डेटर्स की है डेटर्स ठीक है एक था दुकानदार समझ में आ जाएगा कहानी बोलते हैं एक था दुकानदार दुकानी इसलिए एक था कस्टमर सामान खरीद लिया ठीक है एक था दुकानदार एक था दुकानी इसलिए एंड देयर इज अ कस्टमर परचेज सम गुड्स और उसने जाते जाते एक बात बोल दिया पैसा बाद में दूंगा मतलब he doesn't pay any money at the time of purchase he is agreed to pay the money of the amount of goods in future period इन सिंपल की हुई सा माने जितने हमें क्रेडिट माने बाकी ठीक है क्रेडिट का मतलब उधार में जब हम लोग उधार में सामान खरीदते और पैसा बाद में देते हैं वो आदमी हमारे लिए क्या हो गया डेटर फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को ट्यूशन करा रहा हूँ तुम लोग आज के आज थोड़ी ना पैसा दोगे यू विल पे व्हेन द मंथ इज कंप्लीट सो तुम लोग मेरे लिए क्या हो डेटर्स हो डेफिनेशन देखो debtors are those person or firm to whom goods have been sold or service rendered on credit सामान बेच दिया सर्विस दे दिया on credit पैसा हम लोग को नहीं मिला and the payment has not been received from them debtors ठीक है तो suppose I am teacher and you are my student तुम लोग मेरे लिए क्या हो debtors हो debtors से पहले student हो I know that लेकिन क्या हो बिजनेस वर्ड में debtors हो तो इन सिंपल जिससे हम लोग को पैसा मिलने वाला है वो हम लोग क्या बोलेंगे debtors जार पर हमें पैसा पाबलगिया আছে এটা আমার কাছে কি হবে debtors done देन वी हैव क्रेडिटर्स सिंपल फोटो देखते ही समझ में आएगा उल्टा हो गया देखो केस जो दुकानदार के लिए डेटर्स था वो डेटर्स के लिए दुकानदार क्या हो क्रेडिटर्स मेरे लिए तुम लोग क्या हो डेटर्स तुम लोग के लिए मैं क्या हो क्रेडिटर्स तो क्या समझे जाग में पैसा দিব लगे ऐसा टू whom we have to pay money in future period जिसको हम लोग को पैसा देना इन फ्यूचर that person is known as or will be treated as creditors opposite of debtors that एग्जाम में opposite of debtors मत लिखना ठीक है The term creditors represent those person or firm from whom goods have been purchased or service rendered on credit and payment has not been made. Okay, I repeat from study. Opposite of debtors. Creditors means opposite of debtors. Exam में opposite of debtors मत लिखना बस याद करने के लिए बोल रहा हूँ. The term creditors represent those person or firm from whom goods have been purchased. जिससे हम लोग ने सामान खरीद लिया और सर्विस रिसीव जैसे हम लोग ने सर्विस ले ली जैसे कि तुम लोग ट्यूशन ले रहे हो मुझसे ठीक है ऑन द क्रेडिट किस बेस पे क्रेडिट कैश और क्रेडिट ठीक है कैश का मतलब वही का वही पैसा दे दिया क्रेडिट का मतलब बाद में पैसा दिया एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड लेकिन पैसा अभी तक नहीं दिया है दिस विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिटर्स
डन 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 डन। तो आज हम लोग ने बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, और एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड और गोल्डन रूल रिलेटेड एक वीडियो मैं अपलोड करूँगा, प्लीज़ उसको भी देख लेना, ठीक है। सो आज का इमान दिस मच इज फॉर टुडे। सो माय डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। आशा करो सर बुझा, समझ में आया होंगे तुम लोग को, ठीक है। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो है, प्लीज़ वेस्ट मत करना, ठीक से समझना। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, यू कैन आस्क मी एनी डाउट 24/7। हम लोग का कोचिंग सेंटर खुला रहता है आप लोग के लिए, कहीं भी कॉल करो, आप लोग को डाउट क्लियर मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और उन लोग को पक्का शेयर करना जो लोग फाइनेंशियल कंडीशन के बच्चे ट्यूशन नहीं ले रहे पारे, সেইবিলাক প্লিজ 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 শ্বেয়াৰ কৰিবা যোনে পইচাৰ কাৰণে টিউশ্যন ল'ব পৰা নাই। সি লিসেন, your life is success when you are able to help other। तुम्हारा जीवन तभी सक्सेस है अगर तुम किसी को हेल्प कर पा रहे हो। তোমাৰ লাইফটো তেতিয়া सक्सेस হয় যেতিয়া তুমি বেলেগক হেল্প কৰিব পাৰিছা। মানুহ হৈ কিনে যদি হেল্প কৰিব পৰা নাই না, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो। तो माय डियर दोस्तों, एटलीस्ट ये वीडियो तो तुम लोग शेयर कर ही सकते हो उन लोग को जो जिसका पेरेंट्स एफोर्ड नहीं कर पाए। तुम लोग तो एफोर्ड कर पा रहे हो, ठीक है। कोई कोई पेरेंट्स ऐसे जो मतलब मिडिल क्लास या तो गरीब है, लोअर मिडिल क्लास है, वो लोग क्या होते हैं ट्यूशन नहीं ले पा रहे, तो उन लोग को खास करके उन लोग के लिए यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो उन लोग को पक्का शेयर करना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे हैप्पी, कीप सक्सेस, बाय।